Hello dear students, so this is the last chapter of study of compounds, that is sulfuric acid. Let's start. The molecular formula is H2SO4, relative molecular mass is 98 and structure is this. In some books the structure is given as this also. So for this level, that is for class 10th, I will suggest you that both of the structures are okay. You can write any of, you can make any of the structure, but why it has not got coordinate bond, or why we show double bond with O, why coordinate bond is shown here, this you will get the idea in class 11th in the detailed study when we will go to the higher classes, when you will study about the Vesper theory, or you will study about the octet rule and the SPDF rule, then you will understand. Right now if you see any of these two structure, both are correct. So this is the structure of sulfuric acid. Then sulfuric acid is called the king of chemicals, and why it is called so? Because there is no other manufactured compound which is used by such a large number of key industries, and it has been known for very long time, because in later middle ages it was obtained as oily viscous मतलब थोड़ा गाढ़ा सा liquid by heating crystals of green vitriol. green vitriol का मतलब ये हो गया आपका, ये है green vitriol का formula. So this is green vitriol. Now when they used to heat this green vitriol, they used to get that viscous, the gaढ़ा सा liquid, and therefore that time it was known as oil of vitriol. So why it was known as oil of vitriol? Because it was obtained by heating green vitriol, and it's a kind of viscous liquid, oily viscous liquid, and that is why it was known as oil of vitriol. So this is the reaction, that what happens when you heat green vitriol crystals, it breaks into Fe2O3, SO2, SO3 and water molecules are given out. तो ये जो SO3 गैस यहाँ से निकली है, this dissolves in water to give H2SO4. Now where does this occur? In free state it is found in certain mineral springs and is formed by the action of water on certain sulfides. So in the combined state they are found as barytes, that is barium sulfates, then gypsum, calcium sulfate, and then kieserite, that is magnesium sulfate. Now let's see the preparation of sulfuric acid. So first is by the oxidation of aqueous solution of sulfur dioxide. Now this sulfur dioxide, when we make an aqueous solution of it with oxygen, we get sulfuric acid. Then sulfur dioxide with water and with chlorine, it will give sulfuric acid and HCl. Sulfur dioxide, water, bromine will give sulfuric acid and hydrogen bromide. So the chlorine and bromine fades because they both are colorful. They are converted to their halides. These are known as halides. Halides means, so halides are any other element which is combined with halogen. So halogen should be there, and one more element should be there, then this combination is known as halide. So these are colorful and they are converted into their respective halides, which are colorless, and that is why color of chlorine and bromine fade. So this was the preparation of sulfuric acid by oxidation of an aqueous solution of sulfur dioxide. Now next one is sulfur with concentrated nitric acid. Now this question is very important for your board. Sulfur reacts with concentrated, now here when you are writing the reaction in your exam, do mention concentrated here with HNO3. So sulfur with concentrated nitric acid will give you sulfuric acid, nitrogen dioxide and water. Please learn this reaction of sulfur with nitric acid. So, now we have to make sulfuric acid on a large scale. So when we are making it on large scale, then the process, the name of the process is contact process. बोर्ड में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से आते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छे से याद करना है और बहुत अच्छे से इसको समझना है. तो सबसे पहले इसमें, बिकॉज देयर आर वेरियस स्टेप्स, सो लेट्स सी द वेरियस स्टेप्स ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस. सो फर्स्ट स्टेप इज प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. पहला है, पहले स्टेप में हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड. और ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी फ्रॉम आयरन पायराइड्स.
Pyrites, as you know, are sulfides. So, iron pyrite is iron sulfide, ore is iron sulfide, and from that ore is roasted. Now, roasted, you know that when we heat anything with oxygen, then it is roasting, and in absence of oxygen, then it is calcination. This is from metallurgy. So, the sulfide ore is taken and it is heated, then you will get iron 3 oxide or ferric oxide. So, ferric oxide and sulfur dioxide will be produced. Now, by burning Louisiana sulfur, that is which is 99.5% pure in purified air, you can get this sulfur dioxide. So, there are two methods for production of sulfur dioxide. After this, we have to purify this gas, that is mixture of sulfur dioxide and air, which contains lot of impurities. So, we have to remove the impurities, and why we remove impurities, in the last video I have already told you. Here I am again explaining that because it poisons the catalyst, that means catalyst loses its efficiency. So, to stop poisoning of catalyst, we have to remove the impurities. Now, this is the whole setup for manufacture of sulfuric acid in contact process, but you only have to learn the reactions and you have to learn the order, that first what happens, then what is the next step, and so on. This whole process need not to be learned, this diagram need not to be learned, only thing you should know the steps. So, first step is from the blower, purified air or oxygen is put into the plant, and then iron pyrite or sulfur is taken and it is burnt, and this iron pyrite will produce sulfur dioxide. This sulfur dioxide, dust particles are removed. So, in dust chamber, dust particles are removed, and through the cooling pipe, gas is cooled through isolated. So, this is the pipe through which this gas is cooled and sent to the scrubbing tower and what happens in the scrubber, the scrubbing tower, here removal of impurities and dust particles by downward spray of water happens. From the scrubbing tower, we go to drying tower, and this is for drying moist gas by downward spray of concentrated sulfuric acid. Drying tower, it goes to the arsenic purifier, and in arsenic purifier, arsenic oxide is removed by passing over ferric hydroxide. तो यहाँ पे ferric hydroxide से arsenic impurities remove की जाती हैं, and then testing box for testing the purity of the gases by passage of light through the darkened box. So, this is testing box. After that, from the testing box, it goes to contact tower, and in this contact tower chamber, catalytic oxidation of sulfur dioxide happens to sulfur trioxide. यहाँ पे SO3 बन जाता है हमारा sulfur trioxide. This iron tower is packed with vanadium pentaoxide, that is catalyst, which is initially heated to 450 degree Celsius. After this, it goes to the absorption tower. In the absorption tower, absorption of sulfur trioxide vapors happens by descending steam of concentrated H2SO4, which is 98% pure. And in the dilution tank, then it goes in the dilution tank. So, this is the dilution tank where oleum is diluted by flow of required amount of water. So, these were the steps which were used in contact process. Now, we will see the most important thing is the various reactions which happen in contact process. So, till now we have read in the first step sulfur dioxide was produced, in the second step purification of gases happened, and now this is the third step, which is catalytic oxidation of sulfur dioxide. So, that the clean dry gas, that is sulfur dioxide and air, is passed through contact tower where vanadium pentoxide or platinum is used as the catalyst. This sulfur dioxide is converted to sulfur trioxide in the presence of platinum, vanadium pentoxide, and at temperature 450 degree Celsius. And here the atmospheric pressure is at almost 2 atm. यहाँ पे जो pressure लगेगा वो 2 atm का लगेगा, और excess of oxygen यहाँ पे हम use करेंगे. Now this step 3 is very important for your exam, क्योंकि इसमें ये बहुत सारे questions पूछे जाते हैं इस वाले step से. That is catalytic oxidation of sulfur dioxide. And this reaction is highly exothermic. ये delta sign आपको दिखाई दे रहा होगा. Product side में इसका मतलब ये
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंड द कैटलिस्ट इज हीटेड ओनली इन द बिगिनिंग, और उसके बाद जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है बाय द हीट एवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन. नाउ यू विल से दैट मैम SO3 को डायरेक्टली हमने पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, कि सल्फर ट्राईऑक्साइड को डायरेक्टली हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं और हमारा H2SO4 बन जाएगा. लेकिन सल्फर ट्राईऑक्साइड को हम डायरेक्टली पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते. उसका रीज़न है कि तो वो बहुत ज़्यादा पानी में डिसॉल्व होता नहीं है और उसके अलावा बहुत वायलेंट रिएक्शन होगा. इट गिव्स लॉट ऑफ हीट. उसकी वजह से क्या होगा, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्प्लर्ज हो जाएगा और ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे उसके, मिस्टी ड्रॉपलेट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एंड दैट इज़ वाई वी डू नॉट मिक्स सल्फर ट्राईऑक्साइड विथ वाटर. तो अब हम क्या करेंगे, हम सल्फर ट्राईऑक्साइड जो फॉर्म किया है हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में, अब हम उसका क्या करेंगे. सो हियर कम्स द फोर्थ स्टेप. दिस इज स्टेप नंबर 4, absorption of sulfur trioxide in sulfuric acid. In the absorption tower, the sulfur trioxide is treated with concentrated sulfuric acid which is 98% pure. और जैसे ही हम इसमें ये concentrated sulfuric acid मिलाएंगे सल्फर ट्राईऑक्साइड में, तो एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है ओलियम, और उसको या उसका दूसरा नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. द फॉर्मूला शुड बी लर्न, और ये रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो व्हाट इज ओलियम आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज ओलियम, एंड तो आपको पता होना चाहिए ओलियम क्या है. जब सल्फर ट्राईऑक्साइड का रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे, वो जो कि 98% प्योर है, तो ओलियम बनेगा. और ओलियम जो है वो उसका फॉर्मूला है H2S2O7 एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. नाउ दिस ओलियम कैन बी डाइल्यूटेड विथ वाटर to get sulfuric acid in the dilution tank. तो calculated amount of water डाल के हम इसमें अपनी desired strength का सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं. तो ओलियम के साथ आप वाटर ऐड करेंगे और आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा. सो दिस इज स्टेप नंबर 5. तो जल्दी से समरी देख लेते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस की, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको समरी अच्छे से याद हो गई तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस पूरा अच्छे से याद हो गया, समझ लीजिए. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, you will do the formation of sulfur dioxide by any of the two processes with either iron pyrite or by sulfur heated in oxygen to get sulfur dioxide. Here also sulfur dioxide is formed. Now this sulfur dioxide is first purified and oxidized to sulfur trioxide by the use of vanadium pentaoxide or platinum as catalyst, and temperature as 450 degrees Celsius and atmospheric pressure as 2 atm, and this is known as catalytic oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide. Third step is conversion of sulfur trioxide into oleum, which is this, and later on oleum is diluted to get sulfuric acid. So this is the summary of contact process, which is very very important. Learn the summary. Summary is all the reactions, and mostly question comes about contact process in board. So if you know the summary, if you know the reactions, you can write the statements, and thus your contact process question can be attempted with ease. Now what are the favorable conditions for the conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide? That is the third step, catalytic oxidation of sulfur dioxide. यहाँ पे क्या क्या आपको favorable conditions रहेंगी हमारी. तो सबसे पहला जो favorable condition है हमारी वो है exothermic reactions are favored at low temperature. So the temperature should be as low as possible. तो जो सबसे अच्छी yield है, maximum yield is found at 410 to 450 degree Celsius. ये आपका favorable temperature range है इस reaction के लिए. Then second is high pressure. So second favorable condition is high pressure because it favors the reaction. और उसका reason क्या है अभी इसको देखते हैं हम. So 2SO2 plus O2 gives 2SO3. अब वॉल्यूम देखेंगे यहाँ पे 2 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम यानी टोटल 3 वॉल्यूम, और यहाँ पे सिर्फ 2 वॉल्यूम. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है ऑन द RHS इज लेस दैन द वॉल्यूम ऑन LHS.
तो इसका मतलब अगर हम इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हमें इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको पहुंचाना है रिएक्शन को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, बिकॉज दिस फेवर्स द रिएक्शन। और ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म्ड हैज लेस वॉल्यूम देन द reactant, but the acid resistant towers which are able to withstand high pressure are difficult to build, hence the pressure of 1 to 2 atmosphere is used. Then excess of oxygen, naturally ज़्यादा अगर excess of oxygen रहेगा तो production of sulfur dioxide will be more। तो हम यहाँ पे जो production है हमारा, उसको sulfur ट्राइऑक्साइड के प्रोडक्शन को फेवर करने के लिए एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यूज करते हैं, बिकॉज इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। देन लास्ट वन इज अ suitable catalyst. Platinum is more efficient as a catalyst than vanadium pentoxide, but because platinum is expensive and it also get easily poisoned, आर्सेनिक ऑक्साइड की जो इम्प्योरिटीज हैं उससे बहुत ईजिली जो प्लैटिनम है वो पॉइजनड हो जाता है, इसीलिए हम प्लैटिनम ना यूज़ करके, जबकि प्लैटिनम ज़्यादा एफिशिएंट है, तब भी हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्लैटिनम, ऑल्दो प्लैटिनम इज मोर एफिशिएंट एज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन, but then also we prefer vanadium pentoxide for the two reason: platinum is expensive and platinum get poisoned by impurities like arsenic 3 oxide easily. So now we will see the properties of sulfuric acid. सबसे पहले physical properties देखेंगे। colorless है, odorless है, sour in taste है, dense oily hygroscopic liquid है, that is it absorb moisture, so it should be always kept stoppered, मतलब bottle कस के बंद करके रखना चाहिए। pure acid की density काफ़ी है, 1.85 है, heavy है water से तो नीचे settle down कर जाता है। boiling point is 338 डिग्री सेल्सियस। Pure sulfuric acid freezes to colorless crystals at 10.4 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत easily freeze हो जाता है जो pure sulfuric acid है। Soluble in water in any proportions, and pure acid is almost a non-conductor of electricity. Dilute acid is a good conductor. ये बहुत important difference है, याद रखिएगा कि जो pure sulfuric acid है वो कैसा है, non-conductor of electricity है। क्यों है non-conductor of electricity, वो भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसको एक बार और पढ़ेंगे आगे वीडियो में। जबकि डाइल्यूट एसिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इज फॉर्म्ड एट 338 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे 98.5% एसिड रहेगा। फिजियोलॉजिकल नेचर में कंसनट्रेटेड एसिड इज हाईली करोसिव एंड इट कैन चार द स्किन ब्लैक। स्किन कहीं स्किन पे गिर जाता है कंसनट्रेटेड एसिड तो आपकी स्किन ब्लैक हो जाती है वहाँ। लेट्स सी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। प्योर 100% सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट एन एसिड बिकॉज इट डज नॉट आयनाइज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो प्योर एसिड है 100% सल्फ्यूरिक एसिड है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो एसिड ही नहीं है, ठीक है। और क्योंकि एसिड क्या होता है, एसिड वो होता है जो हमें H+ या H3O+ आयन दे। तो जो प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है नहीं, इसमें से H+ आयन नहीं निकलता है, आयनाइज नहीं हो सकता है जब तक कि आप उसको कहाँ नहीं डालेंगे, पानी में डिसॉल्व नहीं करेंगे। तो जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तब वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है और तब हाइड्रोनियम आयन, और चूंकि 2 H इसमें हैं तो दोनों H हम रिमूव कर सकते हैं इसमें से, क्योंकि 2 स्टेजेस में आयनाइज होता है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज डाइबेसिक एसिड। तो एसिड बेसिस इन सॉल्ट में एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए कि डाइबेसिक एसिड और मोनोबेसिक एसिड कौन से होते हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिपेंड अपॉन वेदर इट इज डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। तो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग आएंगी, डाइल्यूट एसिड की अलग और कंसनट्रेटेड एसिड की अलग। सो देखेंगे कि डाइबेसिक कैसे है एसिड, व्हाई इट इज डाइबेसिक एसिड, हाउ इट इज डाइबेसिक एसिड, बिकॉज इट आयनाइजेज इन 2 स्टेजेस। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट कैन फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, 2 तरह के सॉल्ट बनाएगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ये वाला एग्जाम्पल हम बहुत ज़्यादा पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी वीडियोस में हम देख चुके हैं। बिलो 200 डिग्री सेल्सियस पे NaCl के साथ एक H निकलेगा, तो आपका यहाँ पे ये Cl और 1 H निकल गया इसमें से, तो यहाँ बचा रह गया HSO4 और ये Cl ने एक H के साथ मिलके HCl निकाल दिया। अब जो बचा है वो है Na और HSO4, तो NaHSO4 बन गया, दैट इज एसिड सॉल्ट। और जब अगर अबव 200 कर दिया तो दोनों हाइड्रोजन निकल गए और हमारा क्या बन गया, Na2SO4 दैट इज नॉर्मल सॉल्ट,
एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमने HCl की प्रिपरेशन में ये वाला एग्जाम्पल देखा था, तो इसलिए ये डाइबेसिक एसिड है। देन लेट्स सी डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अगर हमें एसिड को डाइल्यूट करना है तो किस तरीके से हम इसको डाइल्यूट करेंगे? नेवर, वाटर जो है उसको हम कभी भी एसिड में पोर नहीं करते हैं डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड एंड विच चेंजेस पोर्ड वाटर टू स्टीम। जैसे ही आप इसमें डालेंगे ये जो वाटर है ये स्टीम बन जाएगा और जिसकी वजह से स्पर्टिंग ऑफ एसिड हो जाएगी। स्पर्टिंग ऑफ एसिड, स्पर्टिंग का मतलब होता है पूरा उछल के एसिड बाहर आ जाएगा, आपके फेस पे भी पड़ सकता है और कहीं कहीं जहां भी पड़ेगा वहां पे बर्न इंजरीज हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम डाइल्यूशन कभी नहीं करते, नेवर पोर। ये खाली सल्फ्यूरिक एसिड के लिए नहीं है, ये जनरल के लिए भी है कि जब आपको एसिड को, किसी भी एसिड को डाइल्यूट करना है, नेवर पोर वाटर ऑन एसिड, इसका उल्टा करना चाहिए। ओके, सो नेवर पोर वाटर ऑन एसिड, ये गलत है, बहुत सारी हीट निकलेगी एंड स्पर्टिंग हो जाएगी एसिड की। व्हाट इज द करेक्ट वे? दिस इज द करेक्ट वे, यू हैव टू पोर एसिड टू वाटर। ये वाटर है आपका, इसमें आपको एसिड डालना है और कंटिन्यूसली इसको स्टर करते रहना है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट एसिड का डालते जाना है। सो यू हैव टू पोर एसिड ऑन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ कंट्रोल्ड मैनर बाय कंटिन्यूअस स्टरिंग। एसिड बीइंग हेवियर विल सेटल डाउन, यहाँ पे नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और जो इवॉल्व्ड हीट होगी वो पानी में अच्छे से डेसिपेट हो जाएगी, मतलब मिक्स हो जाएगी और स्पर्टिंग और ऑफ एसिड will be minimized. So this is the correct way of dilution of acid, and this applies to all the acids. So as I told you, properties of dilute sulfuric acid is different from properties of concentrated sulfuric acid. So let's see the properties. So first property is acidic property. Now dilute, अब यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे एसिड जो है हमारा वो डाइल्यूट है, तो जब भी एग्जाम में लिखेंगे तो आप डाइल्यूट जरूर लिखेंगे। अगर आपका डाइल्यूट के साथ रिएक्शन दिखा रहे हो आप तो डाइल्यूट मेंशन करना है। सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल विच आर अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज। जो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं एक्टिविटी सीरीज में, उनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो एक्टिव मेटल प्लस एसिड विल गिव यू मेटल सल्फेट, यहाँ पे है ना सल्फेट आया और इस मेटल के साथ रिएक्ट कर गया और बचा हमारा हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। तो MgSO4 बन गया और H2 निकल गया, ZnSO4 बन गया और H2 निकल गया, FeSO4 बन गया और H2 निकल गया। तो मेटल सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन विल बी इवॉल्व्ड। और जो नोबल मेटल्स गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, कंसंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट H2SO4 हो, किसी भी कंडीशन में H2SO4 के साथ वो रिएक्ट नहीं करते। देन सेकेंड प्रॉपर्टी इज बेसिस को न्यूट्रलाइज कर देगा। एसिड है तो नेचुरली क्या करेगा, डाइल्यूट की बात हो रही है यहाँ पे, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा बेस को। व्हेनेवर एनी बेस और अल्कली इज एडेड टू एसिड, you know it, the neutralization reaction happens, that is it gives salt and water. So when we add acid, that is H2SO4 in dilute condition to any of the base, what are bases, metal oxides and metal hydroxides, then you will get salt and water. Then with carbonates and bicarbonates, so dilute sulfuric acid का reaction carbonates and bicarbonates के साथ, so you will get कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, लेकिन साथ में गैस आएगी कार्बन डाइऑक्साइड। देन सल्फाइड के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आएगी। सो व्हेन एनी मेटल सल्फाइड इज यूज्ड विद एसिड यू विल गेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस विल बी इवॉल्व्ड। और सल्फाइड्स के साथ, ITES के साथ, सल्फाइड्स के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस आएगी। दैट इज इफ यू टेक सल्फाइड और बाइसल्फाइड you will get salt, water and sulfur dioxide gas. Sulfur dioxide is poisonous and therefore responsible for polluting environment. It adversely affects the human health and vegetation. So sulfur dioxide is a dangerous gas. तो ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई हमारी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। इसको मैं एक बार बाद में वीडियो जहाँ खत्म होगा ये जो डिफरेंसेस हैं इनको समराइज कर दूंगी। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्ट ऑफ वोलेटाइल एसिड अगर हम लेते हैं और उसका साथ रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो एसिड सॉल्ट बनता है और वोलेटाइल एसिड बनता है। ये
ये वाला जो पॉइंट है बहुत अच्छे से आपको याद करना है। इफ़ यू टेक सॉल्ट ऑफ वोलेटाइल एसिड, मतलब ऐसा एसिड जो वोलेटाइल हो उसका सॉल्ट, जैसे NaCl है, तो NaCl कब बना होगा, जब एक बेस NaOH प्लस वोलेटाइल एसिड HCl ने रिएक्ट किया होगा तो NaCl बन गया और वाटर बन गया, है ना, सॉल्ट और वाटर। तो ये जो सॉल्ट है ये इस एसिड का है ना, वोलेटाइल एसिड का सॉल्ट है। तो सॉल्ट ऑफ वोलेटाइल एसिड दैट इज NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, HNO3 भी वोलेटाइल एसिड है ना, और HCl भी वोलेटाइल एसिड है, तो और एसिटिक एसिड भी वोलेटाइल एसिड है। तो यहाँ पे जितने भी एसिड्स हमने लिए हैं वो सब वोलेटाइल एसिड्स हैं, उनके सॉल्ट्स लिए हैं, और जब उनका रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया तो एसिड सॉल्ट है। एसिड सॉल्ट्स क्या होते हैं ये आप एसिड बेसिस इन सॉल्ट में अच्छे से उसको समझ लीजिए। एंड देन साथ में फॉर्मेशन ऑफ वोलेटाइल एसिड हैपेंस। तो ये सारा ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हैज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड सो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉन वोलेटाइल एसिड। इतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है ना, 338 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए उसको नॉन वोलेटाइल कंसिडर किया गया है। एंड देयरफॉर इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग वोलेटाइल एसिड। तो नॉन वोलेटाइल एसिड से वोलेटाइल एसिड प्रिपेयर किया गया है। कौन कौन से हैं वोलेटाइल एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, और इस तरह से डबल डिकम्पोजिशन, Na चला गया SA4 के साथ और H चला गया HCl के साथ, इसको डबल डिकम्पोजिशन कहते हैं ना। तो डबल डिकम्पोजिशन मेथड से सॉल्ट प्रिपेयर होता है, ये जो एसिड सॉल्ट प्रिपेयर हो। जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट from this chapter, first of all, contact process was very important, and now the second thing which is very important जिससे question आता है, that is sulfuric acid as an oxidizing agent। इसमें से भी बहुत important questions बनते हैं आपके बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले देखते हैं कि this oxidizing property of concentrated sulfuric acid is due to this फॉर्मेशन ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन। जब ये डिकम्पोज होता है, डिकम्पोजिशन होता है इसका, थर्मल डिकम्पोजिशन, तो वाटर बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और नेसेंट ऑक्सीजन बनती है। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है इट मेक्स इट हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है दूसरे को, और दूसरा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये खुद रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस हो जाता है तो ये क्या बनेगा आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो दिस नेसेंट ऑक्सीजन नॉन मेटल्स को, मेटल्स को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, सबको क्या करेगी, ऑक्सीडाइज कर देगी। और कैसे कर देगी ऑक्सीडाइज, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसको दे देगी और उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे नॉन मेटल को देखेंगे, मेटल्स को देखेंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एक एक करके देखेंगे। सो नॉन मेटल्स, ये वाले रिएक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। रिएक्शन ऑफ कार्बन विद सल्फ्यूरिक एसिड और रिएक्शन ऑफ सल्फर, या रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब भी कार्बन और सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक यहाँ मेंशन करिएगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस विल बी फॉर्म्ड, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। जबकि कार्बन के साथ 3 कंपाउंड्स बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मेटल के साथ देखेंगे ये वाला रिएक्शन, कॉपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर वाला। कंसंट्रेटेड जरूर मेंशन करेंगे यहाँ पे, कंसंट्रेटेड, तभी कॉपर जो है वो नीचे है हाइड्रोजन से एक्टिविटी सीरीज में, तो इसलिए नॉर्मल केस में, डाइल्यूट केस में ये रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन जब कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे तभी ये कॉपर सल्फेट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। इसीलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपका कंसंट्रेटेड मेंशन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देन जिंक सल्फेट बनेगा और वाटर बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड। एंड नाउ वी विल सी दी ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्रोमीन, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्सपेक्टिव से, हाइड्रोजन सल्फाइड, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ सल्फर बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा यहाँ पे, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, a temporary bleaching property due to its reducing nature in presence of moisture. The sulfur dioxide in presence of moisture with concentrated sulfuric acid will give nascent hydrogen. और ये जो nascent hydrogen है ये क्या करेगा, nascent hydrogen colored material को colorless कर देता है, but this colorless material if remains in air regains its original color. तो temporary bleaching agent है ये।
तो स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट नहीं है क्लोरीन की तरह, बल्कि डेलिकेट मटेरियल्स को ब्लीच कर देता है। तो कलरलेस मटेरियल प्लस ऑक्सीजन गिव्स कलर्ड मटेरियल, मतलब रिवर्स हो जाता है ये रिएक्शन। डेलिकेट मटेरियल्स जैसे कि कलर्ड क्लोथ्स, कलर्ड वेट फ्लावर पेटल्स और फ्रेश ग्रीन ग्रास, इनको ब्लीच कर देता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी अलग कर देता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट? डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल में से भी वाटर को रिमूव कर सकता है, एंड दैट इज व्हाई इट रिमूव्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम सॉल्ट। तो ये एग्जांपल है, CuSO4 के साथ अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 को रिएक्ट करेंगे तो आपको डर्टी वाइट कॉपर सल्फेट और वाटर विल बी रिमूव्ड बाय एसिड। ये वाला रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। ये वाला रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज, शुगर, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का मतलब पेपर, कॉटन, वुड, दे रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव अ ब्लैक स्पॉन्जी मास ऑफ कार्बन। काले कलर का एक स्पॉन्जी सा, मतलब बड़ा स्पंज जैसा मास आपको दिखाई देगा अगर कार्बोहाइड्रेट्स कोई भी रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, और जो कि राइज करेगा। आपने वो देखा होगा दिवाली में, वो एक हम लोग काली सी वो टैबलेट जैसी जलाते थे ना, और उसमें से वो सांप जैसा निकलता था, बिल्कुल सेम रिएक्शन होता है अगर आप शुगर पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। तो यू विल गेट ब्लैक कलर substance, spongy mass which rises up and that is known as sugar charcoal. उसमें steam भी निकलती है और पूरा mass gets heated due to exothermic reaction and they are set to get charred, बिल्कुल काले हो जाएंगे। ये है रिएक्शन। ग्लूकोज के ऊपर आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो इसमें से वाटर निकाल दीजिए आप, तो बचा आपका कार्बन। यहाँ पे भी देखेंगे हम केन शुगर लेंगे और उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो शुगर चारकोल, वही क्योंकि ये चारकोल मतलब एक तरह का कोल ही हो गया, तो जो कोल है वो शुगर से बना है इसलिए उसका नाम शुगर चारकोल यहाँ पे दे दिया, और वाटर वेपर निकल जाएगा उसमें से। दिस रिएक्शन, सो कार्बन obtained in this reaction is very pure and it is called as sugar charcoal. We will take concentrated sulfuric acid and we will take crystals of sugar. You will see a lot of steam and black spongy carbon mass will rise up like, so we will add sulfuric acid to powdered sugar like this और उसको stir कर देंगे और फिर उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे and you will see that this black carbon mass rises up और ये बाहर की तरफ निकल के इस तरह से black वाला जो part है ये बाहर की तरफ से निकल के ऐसे गिरने लगता है। ठीक है, और ये रिएक्शन बहुत देर तक होता रहता है, जब तक शुगर है उसमें तब तक पूरा ही ये ब्लैक मास होकर बाहर आ जाता है। तो पूरी white sugar is converted to this black charred substance that is sugar charcoal. Then another property of concentrated sulfuric acid is that organic acids and organic compounds can be dehydrated by concentrated sulfuric acid as follows. पानी निकल जाता है, dehydrate हो जाता है। ये हमारा आपका आ गया formic acid and this formic acid में से carbon monoxide and water will be given out. From oxalic acid, if oxalic acid reacts with concentrated H2SO4, carbon monoxide, carbon dioxide and water will be given out. Then C2H5OH, ethanol, ethanol में से ethylene बन गया। ठीक है, so अब हम देखेंगे dehydrating action of concentrated sulfuric acid. So what we will see dehydration of alcohol and it will give alkene. ये है हमारा ethyl alcohol. ethyl alcohol मतलब C2H5OH, ये C2H5OH जो है हमारा, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जैसे ही वाटर रिमूव होगा ये जो बॉन्ड्स थे ये वाले ये यहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जैसे ही डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे ये तो हमारा बन जाएगा इथाइलिन, दैट इज अल्कीन। दो हैं एथ तो इथीन बन जाएगा यहाँ, दैट इज C2H4, इसको इथीन भी बोलते हैं और इसका कॉमन नेम है इथाइलिन। तो ये जो हमारा अल्कोहल से इथाइलिन बन रहा है या अल्कोहल से अल्कीन बन रहा है ड्यू टू द डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ विल सी द डिफरेंस बिटवीन कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयनाइज हो जाता है ग्रेट एक्सटेंट, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो डाइल्यूट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि कंसंट्रेटेड एसिड ही नहीं है, इट्स नॉट अ एसिड, इट्स वेरी वेरी वीक एसिड। यहाँ पे वीक एसिड लिखा है बट जनरली वो एसिड होता ही नहीं क्योंकि बिल्कुल भी आयनाइज नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बट इट इज़ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट और वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। देन इट कैन नॉट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
डाइल्यूट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी नहीं है और नॉन वॉलेटाइल भी नहीं है, जो कि कंसनट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है और नॉन वॉलेटाइल एसिड भी है। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी नहीं है, जबकि ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और लास्ट वन, ये नॉन वॉलेटाइल नहीं है और ये नॉन वॉलेटाइल है। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज समराइज कर ली हमने। ये नॉन वॉलेटाइल नहीं है और ये नॉन वॉलेटाइल है। देन कम्स प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सल्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो प्रेसिपिटेट कर देता है इनसॉल्युबल सल्फेट्स को, किस किस के, लेड के, बेरियम के और कैल्शियम के, फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट। तो इफ यू विल डू दिस रिएक्शन विथ लेड नाइट्रेट, देन बेरियम क्लोराइड, सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर कि जो सल्फ्यूरिक एसिड अगर उसका रिएक्शन हम लेड, बेरियम और कैल्शियम के सॉल्यूशंस के साथ करेंगे तो हमारे को इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, दैट इज लेड सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट के। और एसिड्स कौन कौन से बनेंगे? HNO3 बनेगा और HCl बनेगा। बेरियम क्लोराइड के उसमें HCl बनेगा और लेड नाइट्रेट में नाइट्रिक एसिड बनेगा। ये वाला रिएक्शन हमने नाइट्रिक एसिड वाले में भी पढ़ा है। सो व्हाट इज द टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फेट्स? दिस white precipitate of barium sulfate which is formed is insoluble in any mineral acid like hydrochloric acid or nitric acid. So this is the first test of sulfuric acid or sulfates. That means when you prepare precipitate of barium sulfate using then any metal sulfate or H2SO4, then you will get the precipitate, and this white precipitate will be insoluble in HCl or HNO3. So this is the first test. So precipitate of both barium sulfate and barium sulfite are white in color. And how would you differentiate between sulfate and sulfite? That barium sulfite dissolves in mineral acids while barium sulfate does not. तो ये डिफरेंस भी आपको याद रखना है कि बेरियम सल्फेट और बेरियम सल्फाइड दोनों का वाइट पीपीटी है। बेरियम सल्फेट किसी भी मिनरल एसिड में, दैट इज HCl and HNO3 में डिसॉल्व नहीं होगा, जबकि बेरियम सल्फाइड जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। सो अनदर टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फेट इज एडिशन ऑफ कॉपर। व्हेन वी ऐड कॉपर टू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई है, दिस इज द टेस्ट फॉर सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फेट। एंड हाउ वुड यू टेस्ट दैट द गैस विच इज इवॉल्व्ड इज सल्फर डाइऑक्साइड? तो सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या है? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को ग्रीन टर्न कर देता है। ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, दिस इज ऑरेंज इन कलर। व्हेन दिस SO2 is passed to this, it changes to green. So you can see here, this is potassium dichromate which is orange. इसको acidified करा by adding H2SO4 to it. Then when we pass SO2 to it, it turns into green substance, that is chromium sulfate, and potassium sulfate and water is formed. And why this color change? Because of, or you can say both the things, either oxidizing property of potassium dichromate solution, or you can say reducing property of sulfur dioxide. The next is when concentrated sulfuric acid is heated with NaCl, then you get a pungent fumes and the gas which is formed is HCl. So this is the reaction. NaCl with concentrated H2SO4 on heating will give you sodium hydrogen sulfate and HCl. So you will see, you will smell the pungent fumes of HCl. और कैसे टेस्ट करेंगे कि HCl ही इवॉल्व हुई है? तो उसको आप HCl का टेस्ट करेंगे, जो हमने HCl वाले लेसन में पढ़ा था। तो यू कैन टेस्ट वेदर द गैस इज HCl by glass rod dipped in ammonium hydroxide, and you will see white dense fumes, and thus presence of HCl is confirmed. So these are some uses of sulfuric acid. Sulfuric acid is used to prepare halogens, carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen and sulfur dioxide. In metallurgy, it is used for the extraction, then in pickling industries, to remove the metallic impurities like oxides and carbonates, and then in lead accumulator, oil refining, and for the manufacture of these substances. So these are some uses of sulfuric acid. Just go through it once so that you must know where exactly it is used. So thus we finish this lesson, and
If you liked my way of teaching, then please share my video, like my video, and if you have any query, you can just post in the comment box.